ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਸੰਡੇ ਦੀ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗॉड ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗॉड ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਪੀਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਜਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਦਿਨਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਦਇਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। आओ मिल के भजन गाइए। पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ। ਆਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ, ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਉਠਾਈਏ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀ ਹੋਲੀ ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਹੋਲੀ। यस। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਟ ਬਾਈ ਮਾਈ ਮਾਈਟ, ਨਾਟ ਬਾਈ ਮਾਈ ਪਾਵਰ, ਬਟ ਥਰੂ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। आओ मिलकर गीत गाने। पाक खुदा, पाक खुदा, पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे ते मेरी दुआ, दर तेरे ते मेरी दुआ। पाक खुदा, पाक खुदा, पाक खुदा पाक बना, दर तेरे ते
तेरी मेरी दुआ। रोज समझाने में लेके आया, रोज समझाने में लेके आया, कदे पवित्र मेरे खुदाया, मेरे खुदाया, कर तेरे विचरावा सदा, कर तेरे विचरावा सदा, दर तेरे मेरी दुआ, दर तेरे मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे मेरी दुआ, दर तेरे मेरी दुआ। दे पवित्र आत्मा में गावांगा सदा, दे पवित्र आत्मा में गावांगा सदा, रात विच जहां, विच जहां, नूर तेरे नल चमका सदा, नूर तेरे नल चमका सदा, दर तेरे मेरी दुआ, दर तेरे मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे मेरी दुआ, दर तेरे मेरी दुआ। तेरी दुआ जालू पुकारे, तेरी दुआ जालू पुकारे, मेरी ईमान की तू ला किनारे, ला किनारे, चेहरे तेरे नु मैं देखा सदा, चेहरे तेरे नु मैं देखा सदा, दर तेरे मेरी दुआ, दर तेरे मेरी दुआ। पाक खुदा मैनू पाक बना, पाक खुदा मैनू पाक बना, दर तेरे मेरी दुआ, दर तेरे मेरी दुआ, दर तेरे मेरी दुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु श्री की जय। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ। आइए प्रभु जी के वचन के लिए आपको तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। हमेशा की तरह 5 सेकंड के लिए सिर झुकाते हैं, प्रभु से मांगते हैं कि हमें तैयार करें, हमारी रूह को तैयार करें, ताकि आज जो संदेश हमें वो दे रहे हैं उनका हम ग्रहण कर सकें, रिसीव कर सकें उसी शिद्दत के साथ जिस शिद्दत से प्रभु ने आज हमारे लिए तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह जी जब इस धरती पे थे, जैसे हम सब जानते हैं 2000 साल पहले वो इस धरती पर आए थे। वो जब इस धरती पे थे तो उन्होंने हमेशा जो बातें की तो दृष्टांतों में, पैराबल्स में बातें की। छोटी सी एक कहानी सुनाते थे
ठीक है, इस कहानी में एक बहुत बड़ा सार होता था, एक बहुत बड़ी शिक्षा होती थी। तो इस तरह वो दृष्टांतों में बातें करते थे। लेकिन जहां उन्होंने दृष्टांतों में बातें की, वहां उन्होंने कई लंबे लंबे प्रवचन भी सुनाए, सरमन्स भी सुनाए। उन प्रवचनों में से एक प्रवचन सर्मन ऑफ द माउंट के नाम से जाना जाता है, पहाड़ पे दिया गया प्रवचन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बुक ऑफ मैथ्यू अगर देखें तो वहां 4 ऐसे लंबे प्रवचन पढ़ने को मिलते हैं। उन चारों में से ये पहले वाला वचन था, ये पहला वाला प्रवचन था जो उन्होंने जब अपनी सेवकाई शुरू की तो सबसे पहले ये प्रवचन दिया। इसे हम सर्मन ऑन द माउंट कहते हैं, पहाड़ पर दिया गया प्रवचन। पवित्र वचन में ये नहीं पता लगता कि वो कौन सा पहाड़ था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि माउंट ऑफ बेटिट्यूस में उन्होंने यहाँ प्रवचन दिया था। So this is one of the longest discourse and one of the best one which is well known. एक ऐसा प्रवचन है which is widely quoted, न्यू टेस्टामेंट में है, और प्रभु यीशु मसीह की जो सबसे बेस्ट नोन टीचिंग्स हैं वो इस प्रवचन में दर्ज है। माय ब्रदर सिस्टर, यहाँ तक कि इस प्रवचन में जो हमें प्रार्थना प्रभु जी ने दी थी, जब शिष्य ने उनसे पूछा था कि प्रभु जी हमें प्रार्थना सिखाओ, तो उन्होंने हमें एक प्रार्थना दी थी जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से जानते हैं, वो भी इसी में दर्ज है, इसी प्रवचन में दर्ज है। इनफैक्ट दिस sermon is noted as the main sermon which contains the basic principles of Christian faith, Christian life. हुआ क्या था कि प्रभु यीशु मसीह गैलिली में प्रचार कर रहे थे, वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी, उनको फॉलो करने लगी, तो वो वहाँ से निकलकर एक पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गए। जब उनको देखा डिसाइपल्स ने, तो वो भी उनके पीछे पहाड़ के ऊपर आ गए। तो वहां बैठ के उन्होंने ये प्रवचन सुनाया था। ये प्रवचन है बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 में, मत्ती की इंजील अध्याय 5 में। प्रभु के वचन में आइए देखते हैं, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 1 से शुरू करते हैं। मत्ती की इंजील अध्याय 5 और पद 1 से। यीशु ने जब यह बड़ी भीड़ देखी तो वह एक पहाड़ पर चला गया, वहां वह बैठ गया और उसके अनुयायी उसके पास आ गए। तब यीशु ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा। क्या उपदेश दिया, आइए देखते हैं। इसी बुक के वर्स नंबर 3 से शुरू होता है, चैप्टर 1 और सॉरी बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 3 से शुरू होता है। क्या उन्होंने बताया वर्स 3 में? धन्य है वे जो हृदय के दीन हैं, स्वर्ग का राज उनके लिए है। वर्स 4, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता है। Verse 5, Blessed are the meek, for they will inherit the earth. धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वह पृथ्वी उन्हीं की है। Verse 6, धन्य है जो नीति के प्रति भूखे और प्यासे रहते हैं, वो hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति देगा। Verse 7, धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया गगन से बरसेगी। वर्स 8, धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के दर्शन पाएंगे। इसीलिए आज हमने प्रभु से ये कहा कि हमें पवित्र बनाए, हमें होली बनाए, क्योंकि वही प्रभु के दर्शन कर सकेंगे जो पवित्र है, जो होली है। वर्स 9, ब्लेस्ड आर द पीसमेकर, फॉर दे विल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो लोग शांति का काम करते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ राइचियसनेस। वो भी धन्य हैं जो प्रभु की धार्मिकता के कारण यातनाएं भोगते हैं। फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन, क्योंकि ये राज्य स्वर्ग का राज उनके लिए ही है। वर्स 11, ब्लेसेड आर यू व्हेन पीपल इंसल्ट यू, persecute you and falsely say all kind of evil against you because of me. प्रभु कह रहे हैं तुम धन्य हो जब लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हें यातनाएं देते हैं, क्योंकि तुम मेरे पीछे चलता है, मेरा बेटे मेरी बेटी, इसलिए लोग तेरे बारे में बहुत सी बुरी बातें भी कहते हैं। और अंत में कहते हैं वर्स 12 में, रिजॉइस एंड बी ग्लैड, कहते हैं आनंदित रहो,
प्रसन्न रहो, बिकॉज ग्रेट इज योर रिवॉर्ड इन हेवन। स्वर्ग में जो आपका प्रतिफल है बहुत ज्यादा संभाल के रखा हुआ है परमेश्वर ने। फॉर इन द सेम वे दे परसिक्यूटेड द प्रॉफिट्स हु वर बिफोर यू। और इसी तरह उन्होंने उन नबियों को, उन भविष्यवक्ताओं को यातनाएं दी थी जो आपसे पहले आए हैं। अब आती है वर्ष नंबर 13, 14, 15 और 16। ये वो पद है जो आज के प्रभु के संदेश का मुख्य वाक्य है। वर्ष 13 में प्रभु क्या कहते हैं? यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आप मानवता के नमक हो। बट इफ द सॉल्ट लूजेस इट्स सॉल्टीनेस, हाउ कैन इट बी मेड साल्टी अगेन? पर अगर नमक अपनी नमकीन भूल जाए, कम हो जाए उसकी, तो उसको ऐसे नमकीन बनाया जा सकता है। इट इज नो लॉन्गर गुड फॉर एनीथिंग। ये किसी काम का नहीं है ऐसा नमक, एक्सेप्ट टू बी थ्रोन आउट एंड ट्रैम्पल्ड अंडरफुट। सिर्फ उसका एक ही काम है, उसको बाहर फेंक दिया जाए और लोगों के पैरों तले वो रुंधे। ये वर्ष नंबर 13 में कह रहे हैं प्रभु, यू आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ। वर्ष नंबर 14 प्रभु क्या कह रहे हैं? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आप जगत के प्रकाश हो। ए टाउन बिल्ट ऑन ए हिल कैन नॉट बी हिडन। एक नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाया नहीं जा सकता। नीदर डू पीपल लाइट ए लैम्प एंड पुट इट अंडर ए बोल। ना ही लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे रख देते हैं, बल्कि उसे दीवट पर रखा जाता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। और लास्ट वर्ष में कहते हैं, लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसा चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। So my brothers and sisters, the center of message for today for us is, प्रभु कह रहे हैं, you are the salt and light of the world। प्रभु आज में जो संदेश देने जा रहे हैं उसका टाइटल है, you are the salt and light of the world। आप दुनिया के नमक और प्रकाश हो। हालेलुया। आइए इन वर्सेस पे गौर करते हैं। प्रभु ने कहा है, तुम समुच्ची मानवता के लिए नमक हो, किंतु यदि नमक बेस्वाद हो जाए तो उसे नमकीन नहीं बनाया जा सकता। जरा सोचने की कोशिश करें, प्रभु ने हमें नमक क्यों कहा है? प्रभु हमें कुछ और बात भी कह सकते थे। नो डाउट नमक एक ऐसी चीज है जो हमारे भोजन के लिए बिल्कुल जरूरी है। नमक के बिना कोई भी भोजन स्वाद नहीं लगता। लेकिन ऐसी कई और चीजें भी हैं जिनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। जैसे पानी। पानी के बिना हम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते। जैसे हवा। हवा के बिना भी हम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते, सांस नहीं ले सकते। तो माय ब्रदर्स सिस्टर, प्रभु ने नमक ही क्यों कहा? जरूर कोई ऐसी बात है कि उन्होंने नमक कहा, क्योंकि नमक जो है वो भी इंडिस्पेंसिबल है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, नमक ऐसी बातें कर सकता है जो हवा और पानी नहीं कर सकते। आइए देखें नमक क्या है। नमक एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जिसको केमिकली हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये फूड में यूज किया जाता है और इसके दो मुख्य गुण हैं। पहला गुण है, इट इज बोथ सीजन द फूड, स्वादिष्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है। एंड सेकंड इज इट प्रिजर्व्स द फूड, फूड को सुरक्षित रखता है। आजकल के जमाने में जब पैदा हुए थे हमने फ्रिज देखे हैं, हम फ्रिज में चीजों को संभाल के रखते हैं। लेकिन पहले के जमाने में जब फ्रिज नहीं थे तो लोग नमक को इस्तेमाल करते थे चीजों को, फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। नमक इतना इंपॉर्टेंट था कि दिस वाज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मनी। जैसे आज हम करेंसी यूज करते हैं, पैसा यूज करते हैं चीजें बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, उस जमाने में नमक जो था वो इस्तेमाल किया जाता था मनी की जगह। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, आप सोच के देखें, आज के जमाने में अगर किसी खाने में नमक ना हो या कम हो तो खाने का स्वाद ही खत्म हो जाता है। मेरे वो भाई बहन जो ब्लड प्रेशर से शिकार है और डॉक्टरों ने मना किया कि भोजन में नमक नहीं होना चाहिए, वो इस बात की गवाही देंगे कि नमक के बिना खाना खाना कितना मुश्किल है। इसलिए कोई भी आप कुकिंग शो देखें, कोई भी आप शो देखें जहाँ जो शेफ है वो चीज़ों को बनाने की विधि बता रहा है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट डालता है उसमें नमक मुख्य होता है।
तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इससे नमक को एक एज ए मेटाफोर, एज ए अलंकार यूज किया है। किस लिए यूज किया है? क्योंकि जो नमक है वो चीज एज ए सीजनिंग वो संभाल के रखता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, और एज ए प्रिजर्वेटिव भी संभाल के रखता है। और मैं ये कहना चाहते थे कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, यू कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, समथिंग गुड यू कैन ब्रिंग इनटू दिस वर्ल्ड। जैसे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है नमक, इसी तरह मेरे बेटे मेरी बेटी, तू कि तू मसीह है, तो इस संसार को इतना टेस्टी, इतना बढ़िया बना सकता है कि लोग उसका आनंद उठा सकते हैं। और एज ए प्रिजर्वेटिव तो इस संसार को ऐसे संभाल के रख सकता है कि संसार में जो बुरी चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं, वो कम होती जाए और अच्छी चीजें आती जाए। जो अच्छाई है, जो चंगाई है, जो ईमानदारी है, वो अच्छी बातें हैं, वो इस संसार में आती जाए। हालेलुया। दिस इज द रीजन व्हाई गॉड कंपेयर्ड अस विद सॉल्ट। लेकिन एक बात उन्होंने और भी की, हमें एक कॉशन दिया, हमें ताकीद किया है। क्या बोला है? कि अगर नमक अपना स्वाद, अपना नमकीनपन खत्म कर दे तो किसी काम का नहीं रहता, उसे फेंक दिया जाता है और उसे लोग पैरों में रोनते हैं। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर, अगर हम अपनी स्पिरिचुअल सॉल्टीनेस खो रहे हैं, अगर हम लोगों को बीच में रह के अलग नजर नहीं आ रहे, हमारे में और गैर मसीहियों में फर्क नहीं है, तो हम अपनी डिस्टिंक्टिवनेस खो रहे हैं। We are no longer transforming this world and we are no longer capable of preserving this world. इस वजह से वो भी दिन आएगा जब प्रभु उस नमक की तरह जिसने अपनी नमकीनपन खो दिया, बाहर फेंक दिया जाता है, हमें भी अपने राज्य से, अपने किंगडम से, अपने कलीसिया से बाहर निकाल देंगे। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरी दुआ है, मेरा ईमान है, मेरा भरोसा है, जितने भी मेरे भाई बहन इस समय ये मैसेज सुन रहे हैं, किसी की जिंदगी में ऐसा दिन ना आए जब उनका स्पिरिचुअल सॉल्टीनेस कम हो और परमेश्वर को कलीसिया से या अपने किंगडम से बाहर निकालना पड़े। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आजकल के संसार में वी हैव टू शाइन लाइक ए स्टार, ताकि दूर से नजर आए, अपने बोलने चालने से, अपने व्यवहार से, अपने रहन सहन से, अपनी जिंदगी से लोगों को हम डिफरेंट नजर आए, ताकि हमारी सॉल्टीनेस खराब ना हो, खत्म ना हो। तो माय ब्रदर सिस्टर, ये सॉल्टीनेस आएगी कैसे? प्रभु के वचन में इसका जवाब मिलता है। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 49, मरकस की इंजील अध्याय 9 पद 49, एवरीवन विल बी सॉल्टेड विद फायर। हालेलुया। हर एक आग पर नमकीन बनाया जाएगा। माय ब्रदर सिस्टर, ये आग वो आग नहीं है दुनियावी आग, ये आग है पवित्र आत्मा की आग, होली स्पिरिट की फायर। जैसे प्रभु के वचन में जहां जहां पवित्र आत्मा का जिक्र आया, उसे फायर के रूप में संबोधित किया गया है। जब पेंटाकॉस्ट वाले दिन में पवित्र आत्मा आए थे, तो उस समय फायर के रूप में आए थे। माय ब्रदर सिस्टर, जैसे चांदी जो होती है, फायर क्या काम करती है? जैसे जो चांदी होती है, जब उसको आभूषण बनाने होते हैं तो पहले उसको प्योरीफाई किया जाता है। कैसे प्योरीफाई किया जाता है? फायर के साथ 7 बार कहकर उसे तपाया जाता है, तब उसकी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है। इसी तरह प्रभु पवित्र आत्मा के रहे और जिंदगी में दुख, पेन्स और डिफिकल्टीज अलाउ करके हमको रिफाइंड करते हैं, हमें पवित्र बनाते हैं। तभी प्रभु ने कहा है कि जो मेरे पीछे चलना चाहता है, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे फॉलो करे। क्रूस उठाने का मतलब है डाइंग टू सेल्फ, अपनी इच्छा नहीं, जो प्रभु की आत्मा की हमें गवाही मिलती है, उसके पीछे चले। ये प्रभु चाहते हैं, तभी हम प्योर रह सकेंगे, तभी हम ब्लेमलेस रह सकेंगे। प्रभु के वचन में जब ये दुख आता है, परेशानी आता है, बहुत दुख होता है, बहुत पेन होती है, हम सह नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने हमें एक हौसला दिया है। 1 पीटर चैप्टर 1, पहला पत्रस अध्याय 1, इन ऑल दिस यू आर ग्रेटली रिजॉइस। कहते सब दुखों में, पेन्स में, जब फायर से आपको तपाया जा रहा है, आप प्रसन्न हो। Though now for a little while you may have had to suffer grief in all kind of strife. जो हर तरह की परीक्षाएं आपको आ रही हैं, उसमें शायद थोड़ी देर के लिए आपको दुखी होना पड़े। These have come so that the proven genuineness of your faith. ये इसलिए आए हैं कि आपका विश्वास परखा जाए, आपका विश्वास खरा हो, which is of greater worth than gold, which perishes even through refined by fire. कहते हैं जैसे सोना
इतना कीमती होता है, उसे फायर के थ्रू रिफाइन किया जाता है, फिर भी वो नष्ट हो जाता है। आपका विश्वास भी इसी तरह परखा जा रहा है इस फायर के थ्रू, इस यातना के थ्रू। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? इट मे रिजल्ट इन प्रेज, ग्लोरी एंड ऑनर व्हेन जीसस क्राइस्ट इज रिवील्ड। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे तब परमेश्वर से आप प्रशंसा पाएंगे, महिमा पाएंगे, आदर पाएंगे। प्रेज, ग्लोरी एंड ऑनर व्हेन जीसस क्राइस्ट इज रिवील्ड। हालेलुया। तो ये वजह है जिस वजह से प्रभु ने हमें कहा यू आर सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। आइए अब दूसरे वचन की तरफ चलते हैं। जब उन्होंने कहा कि आप जगत के प्रकाश हो, एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपाया नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते, बल्कि उसे दीवार पर रखा जाता है और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसा चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थित तुम्हारे परम पिता की महिमा का बखान करें। हालेलुया। तो प्रभु में कह रहे हैं हम ऐसी लाइट हैं और हम ऐसी लाइट बने, ऐसी रोशनी बने कि जिसकी वजह से हमारे अच्छे काम हो और अच्छे कामों को होने की वजह से हमारे परमेश्वर की महिमा हो स्वर्ग में। और ब्रदर सिस्टर, आप जानते हैं अगर एक कमरे में अंधेरा है तो उस कमरे में जितनी मर्जी अच्छी वस्तुएं पड़ी हो, महंगी वस्तुएं पड़ी हो, दिखाई नहीं देती। लेकिन जब कोई छोटी सी कैंडल लेकर कमरे के अंदर आता है तो कमरा प्रकाशमान हो जाता है और सब कुछ नजर आ जाता है। भाई ब्रदर सिस्टर, कैंडल छोटी है या बड़ी है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास बड़ी कैंडल हो लेकिन वो जली ना हो तो मैं कमरे में लेके जाऊंगा, प्रकाश नहीं होगा। लेकिन मेरे पास कैंडल छोटी हो लेकिन जलती हुई हो, जब मैं ले के कमरे में जाऊंगा वहां प्रकाश हो जाएगा और सारी चीजों की ब्यूटी मुझे नजर आएगी। इस कमरे में महंगी अच्छी से अच्छी चीजें पड़ी हैं, मुझे नजर आएंगी। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर तो वो कहते हैं कि आप ऐसी लाइट बनो, ऐसी लाइट हो कि जिससे सब तरफ अच्छाई अच्छाई नजर आए। जहां आप जाएं वहां पे अच्छाई अच्छाई हो आपके आने से, आपके प्रकाश से। माय ब्रदर सिस्टर, जो लाइट है वो डार्कनेस को डिस्पर्स करती है, दूर करती है। और इसी तरह बहुत सारे बैक्टीरिया जो डार्कनेस में पैदा होते हैं या बढ़ते हैं, बनते हैं, तो लाइट में खत्म हो जाते हैं। यही प्रभु हम कह रहे हैं कि यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और आप इस तरह की लाइट बनो कि जहां कहीं जाओ आपके आने से जाने से मार्वलस थिंग्स हो, मिरेकल्स हो, उस जगह में डिफरेंस आ जाए। जहां लोग गंदी बातें कर रहे हों, गंदे जोक सुना रहे हो, आप जहां जाएं तो वहां उनकी मुंह बंद हो जाए और प्रभु की बातें वहां होने शुरू हो जाए। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, इसीलिए प्रभु ने कहा है अपने डिसाइपल्स को, अपने फॉलोअर्स को, लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन। आपकी रोशनी लोगों के सामने जले, ये प्रभु ने हमें हुक्म दिया है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये ऐसी लाइट है जो दूसरे लोगों को कंफर्ट देती है, खुशी देती है, जॉय देती है। माय ब्रदर्स सिस्टर, ये वो लाइट नहीं है जो हमारे किसी खूबी से, मैं सुंदर हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्यादा ऊंचा लंबा हूँ, मैं ज्यादा पैसे वाला, वो उसकी लाइट नहीं, ये किसी और लाइट की बात करते हैं। वो लाइट जो हमारे अंदर है। जैसे आप जानते हैं सूरज और चंद्रमा दोनों में लाइट है, लेकिन दोनों की लाइट का फर्क है। सूरज की जो लाइट है उसके अंदर से आती है। कैसे आती है? अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा। सूरज एक बहुत बड़ा ग्रह है, एक प्लेनेट है जो इसके अंदर इतना ज्यादा मटेरियल मादा है। और साइंस में ये बताती है कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो सूरज के अंदर जो मटेरियल है वो टनों टन, हजारों टन एवरी सेकेंड जलता है और उसके जलने से वो रोशनी निकलती है और हमें दिखाई देती है। लेकिन जो चंद्रमा है उसका अपना प्रकाश नहीं है। जब सूरज का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमें चंद्रमा नजर आता है। इसी तरह माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द लाइट व्हिच गॉड इज टॉकिंग अबाउट इज नॉट द लाइट ऑफ us, it is the light of Jesus which is inside us। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु हमारे अंदर आते हैं पवित्र आत्मा के रूप में, ये वही लाइट है। Jesus is the light which God is talking about here। प्रभु के वचन में लिखा है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, यूहन्ना 1:4, in him there was life and that life was a light for the people of the world। उसी में जीवन था और उस जीवन ही दुनिया, और वह जीवन ही दुनिया के लोगों के लिए प्रकाश था।
So my brothers and sisters, Jesus dwells in us and He is our light. So we are a beacon of light living among darkness. अंधकार में रहते हुए हम एक लाइट है. My brothers and sisters, हमारे आसपास जो संसार है हमारी रोशनी की वजह से वो लाइट अप हो जाता है, because we have a connection with Jesus. My brothers and sisters, ये कैसे होगा? We have to behave differently. We have to speak differently than the world. हमें वो बातें करनी पड़ेगी, वो बातें बोलनी पड़ेगी जो लोग नहीं करते. My brothers and sisters, people can see God through our talk, God through our action, God through our life. कई बार ऐसा होता है, आपने किसी ऐसे गैर मसीह को, नॉन बिलीवर को देखा होगा जिससे जब आपने प्रभु के वचन की बात की तो उसने उस लाइट को, उस रोशनी को नहीं दिया. किस लिए नहीं दिया? किसने उस प्रभु को स्वीकार नहीं किया? इसका प्रभु के वचन में जिक्र है. 2 Corinthians chapter 4, दूसरा Corinthians अध्याय 4 verse 4. The God of this age has blinded the minds of unbelievers. Hallelujah. इस संसार के भगवान ने, मीन्स शैतान ने, जो अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, so that they cannot see the light of the gospel, ताकि वो इस सुसमाचार की रोशनी को ना देख सकें. That displays the glory of Christ, जो परमेश्वर की महिमा दिखाती है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा दिखाती है. Who is the image of God, जो परमेश्वर के साक्षात प्रतिरूप है. So my brothers and sisters, बहुत बार ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो अंधकार में होने की वजह से हमारे सुसमाचार को नहीं सुनना चाहते, प्रभु की बातें नहीं सुनना चाहते, और बहुत बार हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि इसके साथ हम कैसी बात करें. But my brothers and sisters, God has called us to be light to the entire world, especially these people who are living in dark. उसके लिए परमेश्वर ने हमें अपनी रोशनी दी है. प्रभु कहते हैं कि if you are called to live in His presence, to live in His truth, to live in His love, then you have to show this love. You have to show this truth to entire world. पूरे संसार को आपने अंधकार से दूर करना है. My brothers and sisters, जितना जितना हमारे आसपास अंधकार बढ़ रहा है, आप सहमत होंगे मेरी इस बात से कि दिन ब दिन हमारी ये दुनिया में अंधकार बढ़ रहा है. वो बातें, वो चीजें जो पहले कभी नहीं हुई थी, आज हो रही हमारे आसपास. हमारे पेरेंट्स के, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में दुनिया फिर कुछ अच्छी थी, लेकिन आज दिन ब दिन खराब होती जा रही है. As in this time darkness is growing, same way we have to grow our light more, so that we can be light in this world and we can shine brightly in this world. Hallelujah. My brothers and sisters, प्रभु के वचन में एक और बात हमें सिखाई गई है. आइए देखते हैं क्या सिखाया उन्होंने. Book of Colossians chapter 4 verse 6. कुलसियों अध्याय 4 पद 6. Let your conversation be always full of grace. जो कोई भी बातचीत करो वो प्रभु के ग्रेस से, प्रभु की कृपा से भरी हो. सीजन विद सॉल्ट, साल्ट की तरह, नमक की तरह वो टेस्टी हो. सो दैट यू मे नो हाउ टू आंसर एवरीवन, ताकि आपको पता हो किसका जवाब कैसे देना है. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु में ये कह रहे हैं कि हमारी हर बातचीत, वो जो विश्वासी हैं, वो जो अविश्वासी, जिनके साथ हमारी बातचीत हो, इट शुड बी सीजन विद सॉल्ट. वो इतनी टेस्टी हो, इतनी अच्छी हो, जैसे किसी भी खाद्य पदार्थ में जब नमक नहीं होता वो हमें स्वाद ही नहीं लगता, लेकिन जब उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल दें तो स्वादिष्ट लगने लगता है. इसी तरह हमारी बातचीत ऐसी स्वादिष्ट हो कि सब उसको मजा आए, सबको अच्छा लगे. आप जानते हैं नमक की अहमियत खाद्य पदार्थ के लिए. जैसे नमक खाद्य पदार्थ के लिए बहुत जरूरी है, इसी तरह हमारी बातचीत में जो ग्रेस है, जो कृपा है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, जितना प्रभु यीशु मसीह के पास रहेंगे, जितना उनकी बातें सुनेंगे, जितना उनकी बातों पे चलने की कोशिश करेंगे, तो उतना ही हम इस लाइट बन जाएगा. शाइन लाइक ए लाइट. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु ने हमें एक और बात सिखाई है लाइट के बारे में, किस तरह का प्रकाश
1 John chapter 1 verse 7. पहला यूहन्ना 1:7. If we walk in the light as he himself is in the light. जैसे हम प्रकाश में चलते हैं जिस तरह कि वो खुद प्रकाश है, we have fellowship with one another. हमारा एक दूसरे के साथ सहभागी हैं, हमारे साथ फेलोशिप एक दूसरे की. And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. और प्रभु जो उनके बेटे हैं, उनका जो खून है वो हमें हर तरह के पाप से दूर करता है. मेरे ब्रदर सिस्टर, बहुत ही बार ऐसा होता है कि जब हम प्रभु से दूर होते हैं, दूर होना शुरू करते हैं, वचन पढ़ना कम कर देते हैं, प्रार्थना करनी कम कर देते हैं, चर्च जाना कम कर देते हैं और हमारी लाइफ दूसरे कामों में बिजी हो जाती है, तो वी फील अवे फ्रॉम गॉड. और इस समय हम ऐसे मसीह बन जाते हैं जिनको प्रभु ने कहा ल्यूकवार्म, गुनगुने मसीह. और गुनगुने मसीह के बारे में प्रभु ने क्या कहा है? बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 3 वर्स 16. Because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. कहते हैं तुम कि आप गुनगुने हो, ना गर्म हो ना ठंडे हो, मैं आपको अपने मुंह से निकालने जा रहा हूँ. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आज के हालातों ने आपका विश्वास तोड़ दिया है, अगर आपका साल्टीपन कम होता जा रहा है, अगर आपके हालातों ने आपको गिरा दिया है, आप कमजोर पड़ चुके हैं, तो हमें होपलेस होने की जरूरत नहीं है. वी हैव ए होप इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, being a follower of Jesus, it is very important that we remain salty. Otherwise, we will become useless and we will be thrown away. My brothers and sisters, आज प्रभु का प्रश्न हम सब के लिए ये है, Are you a salty Christian? Are you light of the world? क्या आप इस संसार के नमक हैं? क्या इस संसार की रोशनी है? My brothers and sisters, अगर हमारी रोशनी कम होती जा रही है, हमारा नमकीनपन कम होता जा रहा है, अगर लोगों के साथ जब हम बैठते हैं उठते हैं तो उन्हें उस तरह का मज़ा नहीं आता जिस तरह का मज़ा अच्छे पदार्थ खा के आता है, there is something missing. We are missing Jesus in our life. We are missing the anointing of Holy Spirit in our life. My brothers and sisters, प्रभु ने कहा है जो मुझसे मांगेगा मैं उससे दूंगा और बहुत तायत से दूंगा. प्रभु ने कहा मैं संसार में इसलिए आया हूं ताकि आप अच्छा जीवन जिए और बहुत तायत का जीवन जिए. प्रभु मांगने वालों को हमेशा देते हैं. प्रभु ने अपने डिसाइपल से क्या कहा था? तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने कभी मांगा नहीं है. सो आइए प्रभु का आज ये वचन सुन के हम अपने आप को सॉल्टी क्रिश्चियन बनाने के लिए, लाइट ऑफ द वर्ल्ड बनाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें. जहाँ कहीं भी समय बैठे हैं अपने मन में धारण कर लें. जब इस सभा के बाद हम अपने घरों में बैठेंगे, शाम की प्रार्थना करेंगे, सुबह की प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, गीत गाएंगे, भजन बंदगी करेंगे, तो प्रभु से खास दरख्वास्त करेंगे कि प्रभु, you have asked me to be the salt of this world. You have asked me to be the light of this world. Help me to grow my light. Help me become more salty in you. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. इससे पहले कि आज की सभा प्रार्थना के साथ, प्रभु जी की प्रार्थना के साथ खत्म करें, हम चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना करें. आप हमें अपनी प्रार्थनाएं भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू. आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे जाके, फेसबुक पे जाके, वेबसाइट पे जाके हमारा फ़ोन नंबर, हमारी ईमेल एड्रेस ले सकते हैं और आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं वो हमें भेज सकते हैं. हम आपके साथ वो मिल के प्रार्थना किया करेंगे. इस समय हम आपके लिए मिल के प्रार्थना करते हैं. इससे पहले कि हम प्रभु जी की लॉर्ड्स प्रेयर करें, इसमें मोना से दरख्वास्त करूँगा जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं इस समय, जो भी हमारे भाई बहन इस समय हमारे साथ शामिल हैं, आइए उनके लिए प्रार्थना करें और आप हमें लीड करें प्रार्थना में. प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी,
ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। Yes, Lord. ਤੁਹਾਡੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਣਾ, Yes, Lord. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜੀ। ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਯਹੋਵਾ ਰਾਫਾ। Yes. ਯੂ ਆਰ ਆਵਰ ਹੀਲਰ। Yes, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀਲਰ ਹੋ। ਨਾ ਔਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗਾਈ ਬਖਸ਼ੋ। ਯੈਸ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਗੋਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਫੂਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਦਿਓ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਕਮਸ ਫਰਮ ਅਬਵ, ਦ Yes. ਫਾਦਰ ਆਫ ਲਾਈਟਸ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯੈਸ, ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੂਮ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ Yes, ਲੇਡੀ ਦੀ, ਸੋ ਉਸ ਵੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਯੈਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਲਾਰਡ, ਯੈਸ ਲਾਰਡ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ। Yes, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ Yes. ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਲਾਦ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। Yes, Lord. ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਯੈਸ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ Yes, ਪੇਸ਼ੀ, Lord. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। Yes, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Lord. ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇਣਾ। Yes. ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਗॉड ब्लेस यू जी। आओ खड़े एक बार फिर प्रभु जी ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਲਾਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ। ਯੈਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਆਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਬਰਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰੀਏ। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਰਸਾਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। Once again, God bless you ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਡਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲਟੀਨੈਸ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਣਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣਾਂਗੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रभु यीशु जिंदा है। God bless you. God bless you. God bless you.